Hello, students. So, I'm starting a new chapter today because we have completed one chapter in history, one chapter geography, one economics, and one chapter in pol science. So, as we have completed one chapter in all the books, so I am starting with this new chapter from history. Some students have asked me to start to do this chapter as they were finding some difficulty in doing this chapter. So I decided to start this chapter. So here I begin with this chapter. This is about Russian Revolution. Last chapter you have read about the French Revolution. It was about France. Now we will be studying about Russia. Now children, try to understand one thing, that we are studying about the history of different countries, and the history that we will be studying, the things that we will be doing, it is very clearly mentioning here that how changes had happened. We will be studying about India also, but that will be studying in next year. But this year we need to understand how the changes have happened in other parts of the world. First we talked about Europe. Now we will be talking about Asia, Russia being Russia being the biggest country in the world. Now just see, a brief introduction is given here about the previous chapter. In previous chapter you read about the powerful ideas of freedom and equality. Whole of Europe was in the impression that whatever had happened in France, the same trend needs to be continued in the other parts in Russia also. So because of French Revolution, uh, change has happened in society, which was structured. Children, try to understand structured. Structured means planned. कैसे करना है, किस तरह से मूवमेंट को आगे लेके जाना है, व्हाट ऑल थिंग्स हैव टू बी क्लैरिफाइड. तो हमने पढ़ा है कि 18th सेंचुरी के पहले, बिफोर द 18th सेंचुरी, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स. यू हैव सीन द फर्स्ट स्टेट, द सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, and it was the church and the rulers who controlled all the economic and social power. Suddenly what happened after the revolution, I'm talking about the French Revolution, uh, it seemed that there will be vast changes that will be happening all over. Big changes needs to be brought about, and aristocracy and church, they faced lot of problems. Aristocracy means the people who were the rulers. They started facing lot of problems after this revolution thing had happened. Okay. Many parts in the world, Europe and Asia also. Shri Ganesh. Suddenly after revolution, what happened? Many parts of the world, Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controlled social power began to be discussed. कि ये जो rulers हैं, who are ruling all over the world, do they really deserve it? क्योंकि रूलर्स क्या करते थे, they used to exercise their immense power. That was a big problem. Got it? So, India में what happened? Raja Ram Mohan Roy, because when other parts of the world this was happening, मतलब फ्रांस में हो रहा था, जर्मनी में हो रहा था, it was happening in Britain, in Portugal, everywhere when these changes were happening, India में भी कुछ changes हो रहे थे. और वो कौन लोग थे जो इस चेंजेस के बारे में बात कर रहे थे? सो वी आर टॉकिंग अबाउट राजा राम मोहन रॉय एंड डिरोजियो. So French Revolution happened. Many other people, they debated the ideas of revolutionary, post-revolutionary Europe. Europe में the changes started happening. There was development in the colonies. In turn, reshaped these ideas of societal change.
all the colonies that were there, means the places which were ruled by the powerful countries, वहाँ पे सोशल चेंज का एक मॉड्यूल बन रहा था एंड पीपल वेयर लुकिंग फॉर चेंज। राजा के राज में रह के वो काफ़ी परेशान हो चुके थे, बिकॉज राजा महाराजा अपने आनंद में व्यस्त रहते थे। दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पुअर पीपल। आम आदमी को क्या चाहिए? याद है फ्रेंच रेवोल्यूशन, लुई 16, Louis XVI's wife Mary Antoinette. People went to the Versailles, you know, the place where the king was living. वहाँ पे लोगों ने जाके कहा, we are very hungry, please give us food, we don't have bread to eat. Then you know what Mary Antoinette says? She says, okay, then have cake. She did not know कि what is poverty, गरीबी क्या होती है ये पता ही नहीं था। तो लोगों को ऐसे माहौल में घुटन हो रही थी। दे वेर फीलिंग सप्रेस्ड एंड चोक्ड। नाउ मेनी पीपल वांटेड चेंज। बहुत सारे लोग थे जो बातें कर रहे थे कि चेंज होना चाहिए। एंड रेस्पॉन्स वैरिड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वॉज नेसेसरी। अलग अलग लोगों का अलग अलग चेंजेस हो रहा था। So they wished for a gradual shift. People said कि changes are necessary, shift होना चाहिए, changes होने चाहिए, and the people who wanted to restructure the society radically means the people who were very reactive, who were very responsive to the changes. अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, इसके बारे में इमीडिएटली बात करने लगते थे। तो इन जो कैटेगरीज थी, जो लोग चेंजेस चाहते थे, द पीपल हु वांटेड चेंजेस इन द सोसाइटी, चिल्ड्रन ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पीपल हु वांटेड चेंजेस इन द सोसाइटी, दे वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ये 3 कैटेगरीज कौन सी थी? कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। नाउ व्हाट हैपेंड? These terms meant in the context of the time, and what separated these strands of politics, मतलब on what basis they were called as conservatives? Conservatives का क्या सोचना था? Liberals का क्या सोचना था? Radicals, what did they think? We will be discussing all this in detail. We must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts or at all times. हर जगह पे ये सारी चीज़ें जो है वो applicable नहीं है. It is nothing like that. But at some places, lot of changes were happening on a very large scale. So now what happens? We will be seeing that some important traditions, political traditions, 19th century ka, they started changing. Some important political traditions, मतलब कि जो political movements were there, in that some changes were happening in the 19th century, and how these changes influence the other parts of the world. पूरी दुनिया में ये जो changes हो रहे थे, इसका क्या फ़र्क पड़ा? इसके बाद हम देखेंगे historical events. History में what all changes had happened. पूरी दुनिया में, इतिहास में क्या क्या बदलाव आए, वी विल बी सीइंग दैट. सो रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन. रैडिकल मीन्स, देखो, एक होता है बहुत ही ज़्यादा लिबरल, वेरी क्वाइट पीपल विथ वेरी simple kind of a thought process, but radicals, they think in a very different manner, in a very forceful manner. बहुत तेजी से सोचते हैं और तेजी से काम करते हैं. So what happened through the revolution in Russia में revolution हुआ. Socialism was the most significant and powerful idea to reshape the society. 20th century में society में जो changes आ रहे थे रशिया में, socialism was very important. Now children, you need to understand what is socialism. Socialism means, children, there are two concepts, capitalism,
सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कैपिटलिज्म में जिन लोगों के पास पैसा होता है, देयर आर सम कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच आर कैपिटलिस्टिक, हु गिव ऑल इंपॉर्टेंस टू कैपिटल, पैसे को सारा इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड सम ग्रुप्स आर देयर विच गिव ऑल इंपॉर्टेंस टू सोशलिज्म। सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह से रह रहे हैं और उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, ये ज्यादा मायने रखता है। सो नाउ वी सी हाउ द चेंजेस वेर हैपनिंग। अभी सोशलिज्म में क्या क्या चेंजेस हुए और सोसाइटी में इक्वालिटी किस तरह से आई, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप द इंट्रोडक्शन पार्ट इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। एज ऑफ सोशल चेंज, एज मतलब कि ये जो टाइम चल रहा था ना, ये पूरा टाइम ही सोशल चेंज का था। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वे आर लुकिंग फॉर चेंज। So the groups that existed in the society: liberals, radicals and conservatives. The liberals were there who thought in a very different manner. बहुत सोच समझ के liberals काम करते थे। Conservatives were there जिनका सोच बहुत ही छोटा था। Conservative way of thinking, got it? Conservative module of thinking. तो the one group, कंजर्वेटिव मतलब बहुत नहीं चाहते थे चेंज, वो सोचते थे जैसे चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। गॉट इट? दैट इज कंजर्वेटिव मोड। तो जो पीपल हु वेलकम्ड द चेंज, मतलब हाँ ठीक है, अगर बदलाव हो रहा है बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से चेंजेस होने चाहिए, वो जो कैटेगरी थी, दे वेर कॉल्ड एज लिबरल्स। अभी लिबरल्स क्या चाहते थे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। This is a very frequently asked question in examination, children. What did the liberals want? Liberals wanted a nation which tolerated all religion. पहला पॉइंट तो ये हो गया, नंबर वन। अभी पहला पॉइंट हमने रिलीजन को लेके इसलिए किया है बिकॉज रिलीजन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी जिस समय की हम बात कर रहे हैं। इन द 19th सेंचुरी, द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, रिलीजन से ही सारे लोग जुड़े हुए थे। एंड रिलीजन के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्यों, अब देखो इसमें डिटेल्स में दिया हुआ है। ऑल द कंट्रीज फेवर्ड वन रिलीजन, हर एक कंट्री जो है दुनिया में, दे वर टॉकिंग अबाउट वन रिलीजन ओनली, एक ही तरीके का धर्म होना चाहिए। एंड ब्रिटेन said that they were favoring the church. Austria and Spain was there, they were favoring the Catholic Church. ठीक है, ब्रिटेन, चर्च ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में जितने भी चर्च थे, they were all dominating the decisions that were taken by the people in Britain. Just a minute, children. England, Austria and Spain. And Austria and Spain favored Catholic Church. Austria and Spain, Italy में, you know, the Pope, the Christian head of the whole world, he is staying there in the Vatican City, which is there in Italy. वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं डिसाइड होती थी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हाट रूल्स एंड रेगुलेशंस विल द क्रिश्चियंस फॉलो। ठीक है, तो लिबरल्स व्हाट डिड दे डू? दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनास्टिक रूल्स। ये जो राजे महाराजे थे ना, इनका जो राज चलता चला आ रहा था, लिबरल्स वेर टोटली अपोजिंग दैट। राजे महाराजे थे, द किंग्स वेर देयर, द रूलर्स वेर देयर, दे डिड नॉट नो एनीथिंग, they did not know what are the problems of the people, and they were becoming the rulers. So people did not like that. They wanted to safeguard the rights of individual. एक आम आदमी के कुछ rights होते हैं, that should be saved. And they said representative government should be there, elected parliament should be there. जैसा फ्रांस में था, the way it was there in France, that was influencing the other parts of the world as well. Subject to the laws interpreted by a well trained judiciary. ऐसे कानून होनी चाहिए
जिसका कि जुडिशियल इम्प्लीकेशंस जो है, द जुडिशरी वेल ट्रेंड, मतलब जो जजेस हों दे शुड बी ट्रेंड वेरी वेल, उनको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं. दैट वाज वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड. हर जगह पे रूलर्स अपने मन मर्जी ना चलाएं. द रूलर्स एंड ऑफिशियल्स शुड नॉट इम्पोज देयर पॉलिसीज ऑन द कॉमन पीपल. दैट वाज द माइंड सेट ऑफ द कॉमन पीपल. ये आम आदमी यही सोच रहा था. सो ऐसा नहीं है कि देवर डेमोक्रेट्स मतलब डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी नहीं चाहते थे. अभी हम लिबरल्स की बात कर रहे हैं. लिबरल्स ओपन सोसाइटी चाहते थे बट दे डिड नॉट वांट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सबको वोटिंग राइट्स नहीं मिलने चाहिए. उनका क्या कहना था, लिबरल क्या कहना चाहते थे कि जिनके पास पैसा है, मेन ऑफ प्रॉपर्टी, दे शुड हैव द वोट, एंड दे ऑल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर विमेन. इतना स्ट्रगल चल रहा है, इतनी फाइट चल रही है, लेकिन विमेन राइट्स के लिए जो है थोड़ा भी दे डिड नॉट थिंक. अभी दिस वॉज ऑल अबाउट लिबरल्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट द लिबरल्स वॉन्टेड. और इसके कॉन्ट्रास्ट में रेडिकल्स क्या कर रहे थे. रेडिकल्स वॉन्टेड अ नेशन which government was based on majority of country's population. Government ऐसा होना चाहिए. What radicals wanted, they thought that the government should be found where all the country's population, सारे लोगों को voting rights मिली होनी चाहिए, and everybody should practice the universal adult franchise. रेडिकल्स जो है ये विमेन को भी सपोर्ट कर रहे थे. लिबरल्स बिल्कुल भी विमेन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे. radicals whatever movement they were carrying on, they did not include women in that. लेकिन the radicals included the women. They also opposed the privileges of great landowners and wealthy factory owners. मतलब पैसे वाले लोगों को ये भी अपोज कर रहे थे. लिबरल्स रूलर्स को अपोज कर रहे थे, एंड रेडिकल्स जो हैं फैक्ट्री ओनर्स, लैंड ओनर्स, मतलब जो जमींदार थे, जो बहुत पैसे वाले लोग थे, उनको ये भी अपोज कर रहे थे. एक्चुअली प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे ये लोग. दे वर नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन कुछ ही लोग अमीर हैं, बाकी सारे लोग गरीब हैं. दे डिसलाइक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू. कुछ लोगों के पास पूरी प्रॉपर्टी है, बाकी लोगों के पास प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है. तो इस चीज को ये लोग अपोज कर रहे थे. दे डिड नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ अ सेटअप. आपको बेटा ये ना यू हैव टू मेक इट इन कॉलम्स. ये जो डिफरेंस है इसको आप प्लीज़ कॉलम्स में लिख लेना. प्लीज़ राइट इट डाउन इन कॉलम्स. कॉलम्स मीन्स मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ऐसे रफ में आई एम एक्सप्लेनिंग. 3 कॉलम्स बना लेना इस तरह से. एक जगह पे लिबरल्स, वन प्लेस रेडिकल्स, एंड अदर प्लेस कंजर्वेटिव्स. अब ये डिफरेंसेस नंबर 1 यहाँ, नंबर 1 यहाँ, नंबर 1 यहाँ, फिर नंबर 2, ये डिफरेंसेस बेटा आपको ये डिफरेंसेस करने ही पड़ेंगे. देर इज नो वे टू सेव योर सेल्स फ्रॉम दीज डिफरेंसेस. गॉट इट. इसका अपना नोट्स बना लेना. Children, I am just giving you a guideline. When we will be having the online session, then also we will be talking about it. सो कंजर्वेटिव्स क्या था, रेडिकल्स और लिबरल्स जो भी काम कर रहे थे, कंजर्वेटिव्स उसको अपोज करते थे. कंजर्वेटिव सेट कि नहीं, ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, स्पेशली फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर अप. वो ये चीज़ तो समझ रहे थे. द कंजर्वेटिव्स वांटेड द चेंज. दे वर अंडरस्टैंडिंग दैट चेंज इज इनएविटेबल. चेंज से अलग नहीं हट सकते हैं, चेंज होना ही पड़ेगा. एंड दे हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस इन द सोसाइटी. 18th सेंचुरी में कंजर्वेटिव्स वेयर अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज. ठीक है, कंजर्वेटिव्स जो हैं वो चेंज के खिलाफ थे. और 19th सेंचुरी में व्हाट हैपेंड, दे एक्सेप्टेड सम चेंज वाज इनएविटेबल. कुछ चेंज तो होना है,
लेकिन कुछ चेंज को अवॉइड नहीं किया जा सकता. इनएविटेबल मीन्स अनअवॉइडेबल. These changes cannot be avoided. लेकिन हमको चेंज करना है, लेकिन पास्ट को भी हमको मेंटेन करके रखना है. वी हैव टू सी दैट पास्ट इज मेंटेन्ड. जो पुरानी चीज़ें हैं उसको हमको बिल्कुल इसी तरह से इन वेन नहीं जाने देना है. वी हैव टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द पास्ट. अब रूलर्स ने रूल किया इतने दिन तक राज किया, और सडनली हम रूलर्स को उठा के बाहर फेंक देंगे. इट डजंट डू गुड. सो कंजर्वेटिव्स वेर द पीपल हु वेर सपोर्टिंग द रूलर्स. दे सेड चेंजेस होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे होना चाहिए. चेंजेस हैज टू बी अ स्लो प्रोसेस. अभी क्या हो गया कि अभी आपको समझ में आ गया. अगेन आई एम टेलिंग यू what was the thought process of liberals, thought process of radicals and thought process of conservatives. तो ये तीनों का ना डिफरिंग आइडियाज था. लिबरल्स कुछ सोचते थे, रेडिकल्स कुछ सोचते थे, और कंजर्वेटिव्स वेर थिंकिंग इन अ डिफरेंट मैनर. तो इनके बीच में क्या होता था ना, अक्सर व्हाट इट क्लैश्ड. जब सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती थी ना, तो लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स के बीच में लड़ाइयाँ होती थी. एंड रेवोल्यूशन के वजह से नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन वाज हैपनिंग इन द 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में एक ज़बरदस्त चेंज हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था. सो बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दीज पॉलिटिकल टेंडेंसीज, ये जो इनका लिमिट्स था, इनका जो पोटेंशियल मीन्स कैपेबिलिटी, हाउ टू ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी. सो दीज limits and potential of political tendencies means अगर राजा नहीं चाहते हैं तो किस तरह का राज होना चाहिए, what kind of a rule should be there. That was a question all over. Children, we are starting the next topic, लेकिन उसके पहले फिर से this is the third time that I am telling you, you have to do this. Liberals, radicals and conservatives. ये डिफरेंस आपके पास बुक है, नहीं है तो ई बुक्स आप अपना डाउनलोड कर लीजिए, उसमें से देख के इसको कर लेना. नाउ व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ टाइम ऑफ सोशल चेंज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. पॉलिटिकल ट्रेंड्स वेयर देयर, अ न्यू टाइम वाज कमिंग अप, social and economic changes were happening, and new cities were coming up, new industrialized regions developed, railways expanded, and industrial revolution occurred. तो अभी पॉलिटिकल चेंजेस के साथ साथ इकोनॉमिक चेंजेस भी हो रहे थे. ट्राई टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन. लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव आपस में लड़ रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चेंजेस नहीं हो रहे थे. चेंजेस वेर हैपनिंग. और वो चेंजेस क्या थे? नए शहर आ रहे थे, न्यू सिटीज वेर कमिंग अप, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स वेर डेवलपिंग, रेलवेज वेर एक्सपैंडिंग, एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज हैपनिंग. तो ये जो चेंजेस हो रहे थे, दैट वॉज समथिंग वेरी पॉजिटिव दैट वॉज हैपनिंग इन द सोसाइटी. पीपल वेर गेटिंग एन आइडिया किधर जाना है, क्या करना है. जिनके पास काम नहीं है वो इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर लेते थे. द पीपल who wanted to move from one place to the other place, railways आ गया था उनकी सुविधा के लिए. तो lot of facilities were being provided. अब ये जो चेंजेस हो रहे थे, मतलब सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे थे, इकोनॉमिक चेंजेस दैट वेर हैपनिंग, इट ब्रॉट men, women and children to factories. ये सारे लोगों को खींच के फैक्ट्रीज में ले आए. वर्क आवर्स वेयर लॉन्ग एंड वेजेस वेयर पुअर. काफ़ी देर तक काम करना पड़ता था, सैलरी उतनी नहीं मिलती थी, एंड अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन. अनएम्प्लॉयमेंट भी था, पर्टिकुलरली लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स. इंडस्ट्रीज़ में काम करने वालों के पास उतना काम नहीं था, एंड इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बहुत कम थी, क्योंकि लोग हाथ से बना हुआ सामान प्रेफर करते थे. पहला तो पता नहीं था कि इंडस्ट्री के बना सामान भी होता है. सो पीपल यूजली प्रिफर्ड द हैंडमेड थिंग्स एंड दे डिड नॉट प्रिफर द इंडस्ट्री मेड थिंग्स, इंडस्ट्रियल गुड्स. तो
people came to towns, they got the employment, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम वॉज देयर. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था? हाउसिंग एंड सैनिटेशन. बिकॉज टाउन्स वेयर ग्रोइंग रैपिडली, शहर बढ़ते चले जा रहे थे. लिबरल्स एंड रेडिकल्स वेयर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन फॉर दीज इश्यूज. ये सारी चीज़ों को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, इसका उपाय निकालने की कोशिश कर रहे थे लिबरल्स और रेडिकल. कंजर्वेटिव तो चेंजेस नहीं चाहते थे ना. Try to understand just now what we discussed about conservatives. Conservatives did not want proper changes. तो कंजर्वेटिव तो बड़े हैप्पी थे कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहना चाहिए. Some pictures are given here, children. Just go through this picture. ये देखो फिगर 1 क्या कह रहा है. लंडन पुअर इन द मिड 19th सेंचुरी एज सीन बाय अ कॉन्टेम्प्रेरी. मतलब उस समय जो थे वो इसको किस तरह देख रहे थे. मतलब लंदन में गरीबों की क्या स्थिति थी. और ये कहाँ से लिया गया है ये ड्राइंग? ये हेनरी मेह्यू ने एक किताब लिखी थी. उस समय के एक थॉट थिंकर थे हेनरी मेह्यू. लंदन लेबर के ऊपर उन्होंने बहुत रिसर्च वर्क किया था. 1861 की बात है. चिल्ड्रन, दिस इज द बिगनिंग ऑफ दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी. So all industries were property of individuals. Now you can see it is clearly mentioned here. Okay. सारे इंडस्ट्रीज जो हैं एक ही आदमी, मतलब द इंडिविजुअल्स वे आर ओनिंग द प्रॉपर्टी ना. लिबरल्स एंड रेडिकल्स जो हैं ये कभी कभी प्रॉपर्टी ओनर्स, दे वेयर ऑफन, प्रॉपर्टी ही पूरी इनकी होती थी. एंड एम्प्लॉयर्स भी थे, ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय भी करते थे बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर चेंज. तो इन्हीं में से कुछ लोग थे जिन्होंने इंडस्ट्री भी खोली, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया, रहने के लिए घर भी दिया. तो दिस वे दे वे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटल चेंजेस. लिबरल्स एंड रेडिकल्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, फिर से मैं बताती हूँ. लिबरल्स एंड रेडिकल्स चेंज ये चाहते थे, कंजर्वेटिव्स चेंज नहीं चाहते थे. गॉट इट? अब क्या हुआ, जिन लोगों ने इंडस्ट्री खोली दे मेड लॉट ऑफ वेल्थ, बहुत पैसा कमाया. कैसे? थ्रू ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल वेंचर्स. दे वेंट टू डिफरेंट कंट्रीज, वहाँ पे ट्रेड किया, इंडस्ट्रीज लगाई, इंडस्ट्री में मशीनें चाहिए वो मशीनें लगाई. तो इंडस्ट्रियल वेंचर्स वेयर देयर एंड दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज्ड. ये जो काम कर रहे हैं इसको एनकरेजमेंट मिलना चाहिए. People should know how changes had happened and its benefits would be achieved if the workforce in the economy was healthy. और उन्होंने कहा इंडस्ट्री अगर खोल रहे हैं, इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग चाहिए, ये वो लोग होने चाहिए जो कि हेल्दी हैं. बीमार लोगों से आप इंडस्ट्री में कैसे काम कराओगे? फिर इंडस्ट्री में आप जो मशीनें लगा रहे हो, इफ एन इलिटरेट पर्सन इज देयर, हाउ विल दैट पर्सन ऑपरेट द मशीन? गॉट इट? ट्राई टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन कि चेंजेस हो रहे थे, चेंजेस के साथ नई नई चीजें सामने आ रही थी. पीपल वेर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेइंग डाउन द इंडस्ट्रीज. एंड अरिस्टोक्रेटिक पीपल वेर देयर ओल्ड. बाय बर्थ उनको लगता था कि इंडिविजुअल एफर्ट इज देयर, लेबर एंड एंटरप्राइज इज देयर. उनको लगता था हर एक आदमी है, उसके पास अपना ताकत है, अपना लेबर है, एंटरप्राइज है. तो द न्यू जनरेशन दैट वाज कमिंग अप, दे बिलीव्ड इन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स. जब तक लोग फ्री नहीं होंगे तब तक अच्छे से काम नहीं हो पाएगा. इफ द पुअर कुड लेबर, अगर अच्छे से लेबर मतलब मेहनत करके काम कर रहे हैं और जिनके पास पैसा है, दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट. दोज हु हैव मनी दे कैन इजिली वर्क इन द सोसाइटी एंड सोसाइटीज कुड ऑल्सो डेवलप. क्योंकि एक आदमी जो इंडस्ट्री लगा रहा है वो खाली अपने प्रॉफिट के लिए नहीं लगा रहा है ना, उसकी इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग आएंगे, वो उनको सैलरी भी देगा. तो अपनी डेवलपमेंट के साथ बाकी के लोगों के एम्प्लॉयमेंट भी ही इज इंश्योरिंग एंड अदर थिंग्स ऑल्सो ही इज लुकिंग आफ्टर. सो मेनी वर्किंग मेन
women who wanted change in the world, they started supporting liberal and radical groups. The people who wanted change, उन्होंने कहा कि लिबरल और रेडिकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको लॉट ऑफ सपोर्ट मिलने लगा. एंड ऑल द पार्टीज ऑल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग लिबरल एंड, और इन्होंने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना ली. दिस वे लिबरल्स एंड रेडिकल्स स्टार्टेड गेनिंग प्लेस इन द सोसाइटी. दुनिया में उनको, सोसाइटी में उनको जगह मिलने लग गई. इसके आगे की चीज़ें हैं चिल्ड्रन, अभी तो वी विल बी डिस्कसिंग इट, विल कीप ऑन डिस्कसिंग इट. इट्स अ लॉन्ग चैप्टर, सो ग्रेजुअली एंड स्लोली विल डू इट. इतना तब तक आप रिवाइज कर लेना. थैंक यू चिल्ड्रन.